मेसोडर्म जमा हो जाता है, कोस्टल ग्रिप डेवलप हो जाता है। सब पूरे में कोस्टल ग्रिप है, होल वर्टिब्रा में, लेकिन थोरेसिक में डेवलप हुआ, बाकी में रूडिमेंट्री रह गया। यही जानना है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द स्टर्नम, वो क्लास लगेगा अभी इसका। डेवलपमेंट ऑफ द स्टर्नम में पहले आप देखिए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टू bars of bone on the anterior aspect, anterior and cranial part of the body. There is the mesodermal condensation in the form of the longitudinal condensation in two or right and left on the anterolateral part of the body of the embryo. That is the mesodermal bar. That is the sternal mesodermal bar. Now here the sum of the mesodermal cell gets converted into chondroblast, and gradually in the process of formation of cartilage is formed. Chondroblast जब बना तो chondroblast आपका फाइबर ग्राउंड सब्सटेंस दिया, कोई इम्प्रिजन हो गया, chondrocyte में बदल गया। अब है कि उसमें जब ओस्टियोजेनेसिस होगा तब ना बनेगा आपका बोन। अभी तो कार्टिलेज में ना हो। इस मेसोडर्मल बार in the process of chondrification, development of sternum, there is a formation of the two cartilage is formed. There are two sternal cartilage is formed on the anterior aspect of the body of the embryo. Now these पहले cartilage होता है, इस बात को ध्यान में रखें। Now these are gradually fused to each other. Cranial-caudal direction. जहाँ ऊपर से फीज होते जा रहा है, नीचे में फीज नहीं होगा, इस तरह से। And the fusion occurs, sternum का दो लाइन का चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। The fusion of the two cartilaginous bar of the sternum, they fuse to each other. 5, 6, 7, 8, 9, 5 मंथ में ही इसका 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. There is the formation of the two cartilaginous centers on each side of the primary center of ossification. दोनों साइड बात को समझ लीजिए। The two cartilaginous bar of the sternum, first of all, they are formed. They fuse from each other from the craniocaudal, ऊपर से नीचे की ओर फ्यूज करते आ रहा है। In the month of the 5, 6, 7, 8, 9 मंथ में 5, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months में ऐसे फ्यूजन क्रमशः नीचे की ओर पूरा चलाया 9वां मंथ तक। In the 5th month, the 5th month में क्या एंड आएगा? 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. In the 5th month, there is the ossification starts and the manubrium sterni is formed. पहला जो आपको खाली इसमें देखे आसान चीज है, कुछ नहीं याद रखने में, मैंने 5, 6, 7, 8, 9 महीना में आपको स्टर्नम बनता है। अब now the what will happen? In the 5th month, वो तो कार्टिलेजिनस मॉडल बन गया। ये कार्टिलेजिनस direction में। Now from the 5th month, there is formation of the manubrium sterni. Sternum तो आपको हो गया पढ़ाई। 5th month, there is formation of the manubrium sterni, and in the 6, 7, 8 months, 6, 7, 8, 9 months, 4 दो में तो body of the sternum बनता है। There are 4 pieces of the body of the sternum is formed during the 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, and that piece of bone is called sternebry. बने स्टर्नम का छोटा छोटा जो पीस रहता है उसको स्टर्नेब्री कहते हैं। स्टर्नेब्री, STERNABRAE, स्टर्नेब्री बना स्टर्नम का बच्चा हो गया। Now this मतलब स्टर्नम होगा। Now the अब इसमें हम लोग जानेंगे starts from the two sides.
ये जो मिड लाइन का बोन है, इट इज ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द टू स्पोर्ट्स। वो इन एवरी मंथ स्टार्ट्स राइट एंड लेफ्ट में, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होके ना फ्यूज हुआ है भाई। तो इस मंथ देयर इज ये कार्टिलेजिनस मॉडल पहले बन गया, कार्टिलेजिनस पूरा मॉडल ग्रेजुअली फ्यूज कर गया। अब आपको बोलना है ये कि इन द ये 5-6 मंथ में कार्टिलेजिनस मॉडल बना, 5 मंथ में स्टर्नम का मैन्यूवरियम स्टर्नाई का मॉडल बना, 6, 7, 8, 9 में बॉडी ऑफ द स्टर्नम का बना, 4 पीस ऑफ बोन में बन गया, 4 पीस 5 पीस जो बना, दैट इज कॉल्ड स्टर्नेबरी। एंड नाउ the ossification center, they starts from the right and left side in the manubrium sterni during the third year में ये तुरंत ossify नहीं होता है। The ossification starts in the manubrium sterni, and first of all the manubrium is formed, ossification. Now start हो रहा है आपका 5 मंथ से ही, उसी समय सेंटर कार्टिलेजिनस मॉडल 7, 6, 7, 8, 9 जब बना ना 9 मंथ, 5वें मंथ में ossification, जब 9 मंथ बना तो कार्टिलेजिनस मॉडल तो आइए था, बोथ आर फ्यूज्ड रेडियोकॉर्डल, साथ साथ यहाँ ओस्टियोजेनेसिस भी शुरू हो गया। So in this way, the osteogenesis, the bones formation of the sternum from craniocaudal direction, they are occurring. जीफी स्टर्नम नहीं बनता है, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका जीफी स्टर्नम नहीं रहता। बात मानिए, जीफी स्टर्नम का कहता है they start to form in the 3rd year and ossify in the 40 years of age. जीफी स्टर्नम तो आप बोन देखते हैं बहुत सा स्टर्नम में ossify 40 years में कहता है ossify होता है। बट these pieces of sternum जहां पर से ossification स्टार्ट हो गया, जैसे तैसे हो रहा है, and manubrium sterni and sternum all become fused to each other at the age of 25। और ये जानने आप कहिएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई डेड बॉडी है, किसी को कोई चाकू मार दिया या डेथ हो गया, तो कंफ्यूजन हो जाता है भाई कि ये बड़ा आदमी है कि बच्चा आदमी। And you will open, जब डेड बॉडी स्टर्नम को जब हम निकालेंगे, if the whole piece of the sternum 5-6 manubrium and the body of the sternum, they all ossify each other, it means the age of the body sternum is more than 25 years। यदि उसमें स्टर्नेबरी कोई रहेगा साइड में सटा हुआ, बीच में नहीं सटा हुआ है, नहीं फ्यूजन है, मैनुब्रियम है और बॉडी ऑफ द स्टर्नम नहीं फ्यूज है, तो हम बोलेंगे कि एज इज मस्ट बी लोअर देन 25, ये बोलेंगे। यदि जीफी स्टर्नम उसमें बन गया तो हम बोलेंगे भाई जीफी कार्टिलेजिनस मॉडल रहता है, जीफी स्टर्नम बना हुआ है तो बच्चा का स्टर्नम है कि बड़ा का। If the जीफी स्टर्नम is formed, yes, it means the age of the sternum is more than 33 years। and जब जीफी स्टर्नम ossified है तो मान लीजिए कि कोई डेड बॉडी है तो उसका स्टर्नम बोलेंगे कि भाई 40 इयर्स का है कि 25 इयर्स। तो यदि जीफी स्टर्नम बोन जैसा लटका हुआ है यहाँ नीचे में, तो उसको कहते हैं आपको 40 इयर्स से ऊपर, ऐसा बुक्स आपका डेवलपमेंट कहता है। So in the 5, 6, 7, 8, 9 मंथ में ossification स्टार्ट हुआ है, बात को समझिए। तो आपको ossification पहले ऐसा किताब मिलता है कि 5 मंथ में जो स्टार्ट हुआ भाई मैनुब्रियम बन गया, लेकिन ये सब भी अलग अलग पीस में बनते जा रहा, बच्चा का बर्थ हो गया, but they are not fused to each other, all because body of the sternum they fused with the manubrium at the age of 20। इतना बात तो समझिए गया। मैंने इसमें यही जानना है कि मैनुब्रियम और बॉडी कब फ्यूज करता है, कितना सेंटर ऑफ कब ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ। कार्टिलेजिनस मॉडल जो बना दो तो बच्चे में बन गया है, और ड्यूरिंग द 5th वीक ही में बन गया। एक चीज हम और एक दिन बोले थे आपको कि मैक्सिमम चीजों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 4th वीक में, जैसे हार्ट, किडनी, वाइटल ऑर्गन सबका 4 वीक में, यदि नहीं भी आधे एग्जाम में तो 4th
रहिएगा, नहीं तो आपको टेली कर जाए, और नहीं तो 5 to 6, तो 5 वीक मतलब 7 महीना हुआ है, 5 महीना बहुत ज्यादा हो गया, और सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अप्लाइड एनाटॉमी, तो खाली इसको याद रखने के लिए 5 और 7 8 याद रखिए। अप्लाइड एनाटॉमी में इसमें क्या जानना है? तो ये पूछा जा सकता है कि स्टर्नम इज डेवलप्ड फ्रॉम द हाउ मेनी सेंटर? तो 5 तो ये बताए थे ना भाई, 5 दूनी 10 ऑसिफिकेशन सेंटर से स्टार्ट, तब स्टर्नेब्री पहले बना, मैनोब्रियम अलग बन गया, अब बाद में फ्यूजन हो गया 25 ईयर। तो पहला आप देखिए मैनोब्रियम स्टर्नाई, मैनोब्रियम स्टर्नाई से यहाँ पर बॉडी ऑफ द स्टर्नम बना, यहाँ फर्स्ट काट लेगा ऐसे ना। तो फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी इज द देयर मे बी a sternal foramen. If the fusion of the sternary is not complete, then leaving a foramen like a structure in the center of the body of the sternum, that is called a sternal foramen. पहला हो गया आपका डिफेक्ट यहाँ sternal foramen। ये भी पेन ठीक नहीं चल रहा है रवि जी, पेन बढ़िया दीजिए तो करीब नहीं चलता वैसे। स्टर्नल फोरामेन, दूसरा कहते हैं स्टर्नल क्लेफ्ट। मान लीजिए ये फोरामेन लंबा हो गया, इसको बोलेगा स्टर्नल क्लेफ्ट, एंड दिस स्टर्नल क्लेफ्ट नए दिनों चल रहा है, हम लोग देखें यही एक स्टर्नल क्लेफ्ट, sternal cleft, and this sternal cleft is usually present in the case of the ectopia cordis. ectopia cordis माने हार्ट, ectopia माने बाहर। कुछ congenital defect ऐसा है जिसमें कि हार्ट साफ दिखता है बाहर से, obviously it is rare, but it is due to the lack of or due to the defect in chondrification of the bones of the sternum. It is represented in the form of a cleft. जैसे आपका हनुमान जी का नहीं है भाई की छाती चीर के दिखा दिया कि अंदर में भगवान राम सीता बैठे हुए, उस टाइप से this sternal cleft is usually present in the case of ectopia cordis if heart is exposed to the surface. तो हो गया। अब देखिए तीसरा डिफेक्ट क्या हो सकता है? तीसरा डिफेक्ट क्या होगा? जीफी स्टर्नम से ओरिजिन है डायफ्राम का, माइंड इट, तो कभी कभी लिगामेंट वो टाइट हो जाता है। इन दैट केसेस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टर्नम जो रहेगा आपका स्लोप लाइक हो जाएगा, इसी स्लोप लाइक आगे इस तरह से हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फनेल चेस्ट। इसको कहते हैं फनेल चेस्ट, वहां चल रहा है फनेल चेस्ट। और पेक्टस एक्सकैवेटम, पेक्टस एक्सकैवेटम, पेक्टस माने हो गया आपका स्टर्नम छाती, और एक्सकैवेटम माने in this cases the anterior surface of the sternum is anteriorly concave, and in that, and why it is due to the shortening of the ligament which is attached with the GP sternum to the diaphragm. In that cases the inferior part of the sternum they are dragged posteriorly, and this condition is called pectus. Pectus माने हुआ pectoral girdle, pectoral region को कहते हैं pectoral region, मतलब स्टर्नल रीजन जब आगे कनकेव हो गया, दैट इज कॉल्ड पेक्टस एक्सकैवेटम और फनेल चेस्ट। तीसरा है आपको चौथा पिजन चेस्ट, PIGEON, पिजन चेस्ट। आप लोग कबूतर देखे होंगे, पिजन को उसका छाती एकदम आगे की ओर निकला रहता है, इस तरह से रहेगा निकला, यहाँ पर रिब रहेगा, एंड ये रिब अटैच रहेगा आपका वर्टिब्रल बॉडी से ऐसे। यहाँ पर रहेगा आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स। इन दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड पेक्टस पेरिनेटम और द पिजन चेस्ट। क्लियर? आपको देखिए इसलिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको
आपको एग्जाम में 1 नंबर फिल द ब्लैंक्स दे देगा. What is the pectus carinatum? Pectus carinatum, that is the pigeon chest in which the anterior convexity of the sternum and on the side of the sternum and the upper and lower part, they are depressed. And in this cases, both केस में होगा. फाइनल चेस्ट इसमें chest cavity or the mediastinum of the mediastinum, the space of the mediastinum becomes down, decreased. इसमें तो जरा सा बढ़ेगा भी, लेकिन साइड से कंप्रेस्ड है. बट इन फाइनल चेस्ट आपको दे कंप्रेस द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट. तो बच्चा जन्म लेगा तो उसी समय से आपको हार्ट में प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज हार्ट इज नॉट एबल टू एक्सपैंड इंटीरियर. तो बच्चा का हार्ट का डेवलपमेंट कम होगा. ये कंप्रेशन ऑफ हार्ट का हमेशा देगा प्रॉब्लम, मैंने सिस्टोल में प्रॉब्लम हो जाए. तो आपको एक्सटर्नल फोरामेन, एक्सटर्नल क्लेफ्ट, फाइनल चेस्ट एंड द पिजन चेस्ट. क्लियर? अब आइए तो 2 लाइन जानना है जी. एक दिन 2 रीडिंग पढ़ जाएगा, हो जाएगा आपका. ये क्वेश्चन हम सेट करेंगे तो इस सब से देंगे यार, ऐसा नहीं कि फिर पे ना लिखा है. डेवलपमेंट ऑफ द cranial bone, cranial bone में 2-4 बात हम जानिए. पहले आपको डेवलपमेंट ऑफ द cranial bone और द facial bone. तो डेवलपमेंट ऑफ द cranial bone और facial bone पहले आपको जानना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट हम समझ रहे हैं. It is developed from the mesoderm, no doubt, but that mesoderm is derived from the neural crest. आपका फेरिंजियल आर्च से भी डेवलप करेगा फेस का बोन, वो भी न्यूरल क्रेस्ट से मेसोडर्म आया. तो पहले डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरोक्रैनियल बोन. डेवलपमेंट ऑफ जो क्रैनियल बोन है, या vertebral bones which is formed at the base of the skull, that is called neurocranium, because they develop at the anterior part of the notochord. मेसोडर्मल कंडेंसेशन जो नोटोकॉर्ड के चारों ओर हो रहा है, this is the occipital somites. इसका नाम रखेंगे occipital somites. Occipital somites develops into the lower part of the occipital bone. आपका माथा में एक तो पीछे साइड का खोपड़ी आपका बना रहा आजकल स्क्वामस पार्ट है, वो तो मेम्ब्रेनस है. बट द सुपीरियर न्यूकल लाइन आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन पीछे में जहां पर हिंदू लोग टिक रखते हैं वहां से नीचे का पोर्शन जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस देख रहे हैं, उससे नीचे का पोर्शन कार्टिलेजनस रहता है. This forms the lower part of the occipital bone below to the inferior nuchal line. ऐसा they are the cartilaginous in range. उसके बाद notochord ऊपर को चला गया. And now the middle dermal condension occurs around the terminal part of the notochord. इसे बढ़ गया. इसको कहते हैं paracaudal cartilage. Paracaudal cartilage. That type of cartilage which is formed around the anterior or cranial aspect of the notochord, here is called the paracaudal cartilage. आप लोग ऑसिपिटल जब बोन देखिएगा तो नीचे में आपका ऐसे है एंटीरियरली बोन, बीच में फोरामेन जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम. So the bones around the foramen magnum and basilar and condylar part of the occipital bone, they are developed from the paracaudal cartilage. अब उसी के साइड में रहता है ओटिक वेसाइकिल. basilar part of the occipital bone के साइड में रहता है. अब ये डेवलप करता है ओटिक वेसाइकिल. इसका नाम है ओटिक वेसाइकिल. That develops into the internal ear वाला सब चीज बनता है इसमें. इंटरनल ईयर का डेवलप करता है आपका पेट्रस पार्ट में. आपको डेवलप करता है ओटिक वेसाइकिल से ऑन द साइड ऑफ द paracaudal cartilage.
उसके बाद आप ये बैचलर पार्ट से आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो आप देखिएगा आगे में एक स्फिनॉइड का बॉडी, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइशियल पार्ट। इसका नाम है हाइपोफाइशियल कार्टिलेज, and that develops into the body of the sphenoid। स्फिनॉइड का देखिए, स्फिनॉइड बोन आप लोग नहीं देखे हैं, देखिएगा यार तो सब एक के दिन नहीं ना होगा, ग्रेजुअल आप अपने समझते जाइएगा, लेकिन आपको जब then you will read everything, then it will be correlated forward and backward, सब आपस में मिलजुल जाएगा अपने। तो इसको कहते हैं आपको हाइपोफाइशियल कार्टिलेज। इसका क्या डेवलप करता है? डेवलप करता है आपको बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड में एक डिप्रेशन रहता है सुपीरियर सरफेस पर, उसको कहते हैं हाइपोफाइशियल फोसा। उसके में पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज रहता है। अब वो हाइपोफाइशियल कार्टिलेज के दोनों साइड में आपका क्या रहता है? टेम्पोरल अल्लाह टेम्पोरली, इसका नाम इधर दे दीजिए अल्लाह। अल्लाह मैंने बीइंग टाइप, अल्लाह टेम्पोरलिस। अल्लाह टेम्पोरलिस डेवलप इनटू द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। स्फिनॉइड विंग कौन है आप देखिएगा, दैट फॉर्म्स द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ग्रेटर विंग बनता है अल्लाह टेम्पोरलिस से, इसको कहते हैं अल्लाह और वाइटलिस। ये बनाता है लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, अल्लाह और वाइटलिस। और वाइटलिस इससे क्या बन गया? और वाइटलिस से आपका लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन आपका शॉर्ट क्वेश्चन फिल ऑफ द ब्लैंक्स आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, अल्लाह और वाइटलिस से जहां ऑर्बिटल प्लेट रहता है, आप देखिएगा बहुत क्लियर हो जाएगा, इसके दोनों साइड में लेसर विंग रहता है, और यहाँ हाइपोफाइशियल फोसा के दोनों साइड में ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है। साइड में तो साइड वाला चीज डेवलप किया। अब कोई पैराकोडल कार्टिलेज से क्या भाई आपका ऑक्सीपिटल बोन बनिए गया है, तो उसका बैचलर पार्ट बना, उसके साइड में ओटिक वेसिकल है, तो साइड में आपका पेट्रस पार्ट टेम्पोरल बोन है, तो वो डेवलप किया। पेट्रस रहेगा तो टेम्पोरल मैस्टोइड पार्ट भी डेवलप कर जाएगा। अब ना इसके आगे में भी है थोड़ा सा, इसको कहते हैं ट्रेविकुलर कार्नी। ट्रेविकुलर कार्नी मतलब है जहाँ जैसा है, that develops into the ethmoid bone। यहाँ पर है नजल कैप्सूल, इसी को होता है नजल कैप्सूल। नजल कैप्सूल से आपका नजल बोन डेवलप करता है, नजल बोन। अब जरा सा ध्यान दीजिए बंधु, आपका क्रेनियल में बोन और फेशियल में बोन है, तो क्रेनियम वाला पहले आप देखिए, यहाँ पर फिर से आप जरा सा एक बार देख लीजिए, नीचे में ऑसिपिटल सोमाइट्स है, उससे डेवलप किया ऑसिपिटल बोन। बिलो टू द आपका जो माथा के साइड में पीछे छुइएगा तो एक जगह पॉइंट बहुत ऊंचा है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। वहां से नीचे का पोर्शन बना है ऑसिपिटल सोमाइट्स। आगे बढ़िए, नोटोफोर्ड का क्रेनियल इसके चारों ओर में हुआ, वो डेवलप कर दिया आपका। बाकी पार्ट ऑसिपिटल बोन का उसी फोरामेन मैग्नम के चारों ओर, बैचलर पार्ट, कॉन्डाइलर पार्ट दोनों ओर बन गया ओटिक वेसिकल से पेट्रस पार्ट। आगे बढ़े तो हाइपोफाइशियल कार्टिलेज, हाइपोफाइशियल कार्टिलेज से डेवलप कर गया बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड। दोनों साइड में अल्लाह टेम्पोरलिस है, अल्लाह मैंने विंग, एक अल्लाह बना आपका ग्रेटर विंग, ये वो अल्लाह और वाइटलिस से लेसर विंग। ट्रेविकुलर कार्नी, ट्रेविकुलर नाम ही है, मैंने स्पॉन्जी बोन टाइप का वहां चीज बन रहा है। देयर आर डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द बोन, दिस बोन से स्पॉन्ज लाइक कार्टिलेज, उसको कहते हैं इथमॉइड बोन। उसके ऊपर में नजल बोन है। अब जरा सा वो देखिए चालाकी बता रहे हैं, अब ब्रेन में नाक में यदि आप घुसाइएगा उंगली, तो नीचे में आप देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा बोन, आपका नाक सुंदर सिर्फ बाहर से लगता है, अंदर में झांकते हैं तो एक नीचे उभार जैसा, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर नजल कार्टिलेज, इंफीरियर नजल खोंका। और ऊपर में दो फिर टेढ़ा मेढ़ा बोन, उसको कहते हैं मिडिल नजल कोंका, सुपीरियर नजल कोंका।
So superior nasal concha, inferior nasal concha is the part of ethmoid bone, और inferior nasal concha is the separate bone, और ये ऊपर वाला तीनों जो टेढ़ा मेढ़ा जो चीज है वो कार्टिलेजिनस है, बाकी सब मेम्ब्रेनस है। अब देखिए, अब नाउ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द cranial bone, इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरोक्रैनियम। अब है विसरोक्रैनियम, थ्रू द विसरो, खाली सुनने का है, थ्रू द विसरोक्रैनियम द बोन्स ऑफ द फेस आर डेवलप्ड। ओके, अब देखिए फेस में क्या क्या बोन है। अब यहाँ मैंडिबल, द मैक्सिमम बोन ऑफ द फेस, दे आर द मेम्ब्रेनस इन नेचर। जैसे आपका तो नाक भी है, और नाक के अंदर जो घुसाते हैं उंगली, आपका दो टेढ़ा मेढ़ा जो बोन है, सुपीरियर नजल कोंका, इंफीरियर नजल कोंका, वो मिडिल नजल कोंका, ये तो सुपीरियर मिडिल कार्टिलेज है। देखिए उसका नाम ही है, किताब में लिखा हुआ सुपीरियर नजल कार्टिलेज, मिडिल नजल कार्टिलेज, इंफीरियर नजल कार्टिलेज। तो सुपीरियर और मिडिल जो है इथमॉइड का पार्ट है। तो आप फेशियल बोन में कहिएगा कि भाई इथमॉइड बोन एज ए होल, और इंफीरियर नजल कोंका इज द कार्टिलेजिनस इन नेचर। बाकी फेस का सारा बोन मेम्ब्रेनस, सारा बोन मेम्ब्रेनस में आप कौन कौन आ जाएगा फेस का भाई? टैगोमेटिक बोन, आपको यहाँ देखिए मैक्सिला, प्री मैक्सिला, उसके बाद नजल बोन, नजल भोमर, छोटा बोन होता है लेक्राइमल, ये भी है लेक्राइमल, भोमर, नजल, जैगोमेटिक, मैक्सिला, प्री मैक्सिला। आपको बॉडी ऑफ द मैंडिबुल, मैंडिबुल का पीछे वाला पोर्शन है रेमस ऑफ द मैंडिबुल में कॉन्डाइलर पार्ट और कॉन्डिलॉइड पार्ट, दोनों कार्टिलेजिनस, ऐसा बुक्स लिख। सो बॉडी ऑफ द मैंडिबुल इज द मेम्ब्रेनस। बाकी तो कार्टिलेज कौन है भाई? तो नाक में जो उंगली घुसाते हैं तो सब कार्टिलेज है। तो इथमॉइड बोन में सुपीरियर मिडिल है, इंफीरियर नजल कोंका इज द पार्ट ऑफ इथमॉइड, इथमॉइड इज द कार्टिलेजिनस बोन। आपको इंफीरियर नजल कोंका इज द कार्टिलेजिनस। अब है कि कुछ बोन में कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनस दोनों है, तो उसमें आप लोग बोन नहीं देखे हैं, क्या कहें, थोड़ा सा बोन पीछे आपको चल रहा है। तो ऑसिपिटल बोन में अभी जो हम बताए, ऑसिपिटल बोन भी तो आपका ऊपर का पार्ट खोपड़ी बना रहा है, अस्कल का बाउंड्री वाल बना रहा है, पीछे का द स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, आपका पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, समझ रहे ना, पेराइटल, बोथ पेराइटल, फ्रंटल बोन एंड द स्क्वामस पार्ट ऑफ दिस वन आपका ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट प्लस टिम्पैनिक प्लेट, और स्फिनॉइड पार्ट का टेरिकॉइड प्लेट, ग्रेटर विंग, लेसर विंग, ये मेम्ब्रेनस है, बाकी सब कार्टिलेजिनस। क्लियर हो गया करीब? और उसके बाद आइए डेवलपमेंट ऑफ द स्कल बोन इन द केस ऑफ द न्यू बॉर्न। सो न्यू बॉर्न वाला भी इसको जरा सा मिटा रहे हैं। अब जरा सा देखिए जी, अप्लाइड एनाटॉमी एक के साथ बता दे। अब नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न आस्कल। न्यू बॉर्न आपको एक चीज और हो गया, माने कि एक चीज और इसमें डाल लीजिए कि क्रेनियल बोन और फेशियल बोन दोनों का मेसोडर्म न्यूरल क्रस्ट सेल से आ रहा है। आपका जो है बोन्स आपका 3 सोर्सेस से बन रहा है, आपको पेरेक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म का पेराइटल लेयर, और एक न्यूरल क्रस्ट है। 3 जगह से सोर्स ऑफ ओरिजिन्स ऑफ कार्टिलेज आपका मेसोडर्म। अब नाउ देयर इज द न्यू बॉर्न आस्कल। न्यू बॉर्न आस्कल में आप देखिएगा, कोई बच्चा जब जन्म लेता है, then you will palpate your skull of the baby, तो ऊपर में एक खाली जगह लगता है, तालू जिसको कहते हैं देहात में लोग, उसको कहते हैं इंटीरियर फ्रंटनेल। सीधा तालू है, आप पीछे में एक खाली जगह है, तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनेल। तो आगे वाला का नाम है ब्रेगमा, पीछे वो कहते हैं लेमडा। इसी ढंग से लेटरल साइड में भी है आपका टेरियन, और पीछे की ओर है स्टेरियन। किस बोन के बीच में हम अभी आपको नहीं बताने जा रहे हैं। एक टेरियन पॉइंट है जहां पर आपका आगे से आपका पहले इन
interior frontal, there is a diamond shaped gap on the superior and interior part of the skull lies in between the frontal bone and parietal. पीछे में कहता है posterior frontal that lies between the posterior part of the two parietal bone and the occipital bone. आगे में है टेरियन पॉइंट, उसके अगेंस्ट में है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इसीलिए कहते हैं कि भाई कान में किसी को एक झाप कहते हैं कि हम देंगे तो एक थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, कभी कभी आदमी का उसमें डेथ हो जाए तो आप थप्पड़ भी नहीं मारिए किसी को, बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ टेरियन। टेरियन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर बोन्स। तो आगे में है आपका ये फ्रंटल बोन, फिर इधर से हो गया पैराइटल बोन, एक है स्फिनॉइड का ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो वहां भी खाली जगह रह जाता है, दैट इज कॉल्ड टेरियन पॉइंट। पीछे में आपका रहता है उसको कहते हैं स्टेरियन पॉइंट, है ना भाई। तो उसी ढंग से आपको उतना नहीं अभी डिटेल जानना है, उसे उधर ध्यान नहीं दीजिए, बोन जब होगा स्कल बोन ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। इसमें हम तो बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रंटल एंड बोन। नाउ द ऑल बोन्स ऑफ द cranium they have the suture and the sutural bone they are not ossified। जब जितना भी suture हम आपको बोल रहे हैं anterior frontal, posterior frontal, टेरियन, स्टेरियन, सब जो ossify कर जाता है in between 1 to 3 months of age after the birth, but the anterior frontal does not। मान लो suppose that the baby is delivered in the labor room, यदि किसी बच्चा का डिलीवरी हो रहा है तो उस समय the diameter of the vagina is less and the cervix से यूट्रस के बाद होता है cervix and vagina। तो cervix से आपको हेड पार करना है। What is the importance of the fetal newborn skull? ये बहुत important point है। वो कहेगा what is the use of this study? अब क्यों बोल रहे हैं? Because the every bones are serrated in nature and they can slip over the other। यदि किसी को अब ने सीजरियन कर देते हैं, ऑपरेशन की बच्चा निकाल लेते हैं, लेकिन यदि आपको in the case of the forceps delivery or when uterine contraction is too much, the bones of the skull, the both parietal, they are run over other and the diameter of the head becomes shorter। ये बहुत बड़ी चीज है। The bones are slip over each other, जैसे आगे से भी चाप दिए, पीछे से चाप दिए, साइड से दाब दिए। All bones of the cranium, vault of the skull, they are slipped over the other and diameter of the head becomes shortened and they can easily pass through the genital tract। So in this way the delivery of the baby is easier। forceps delivery कराते हैं, यदि आपका difficult delivery होता है तो forceps से भी cranial bone को दाबते हैं and the both parietal bones run over the other and the diameter of the skull becomes shortened and after the baby फिर आपका डायमीटर वही हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। एक चीज और जानना है, इन केस ऑफ द न्यूबॉर्न तो साइज ऑफ द ब्रेन इज 25%, 1/4 रहता है। The amount of the brain matter in the case of the baby is about 1/4, ऐसा किताब लिखता है, कंपैरिजन टू द एडल्ट ब्रेन। इतना एडल्ट में हम लोग का ब्रेन है उसका 1/4 साइज रहता है बच्चा, but they are attached to the normal size at the age of 4 years। तो 3 साल 4 साल में आपका ब्रेन बच्चा का उतना बड़ा साइज हो जाता है जितना कि एडल्ट का है। अब है कि व्हाट इज द एक इम्पोर्टेंस, आपका कोई कहेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रंटल नेल, तो आपको बोलिएगा कि भाई फ्रंटल नेल एंड द of the skull bone, they are not ossified before the birth, that's why they run over the other after the compression and the delivery of the baby is easier through the genital passage। दूसरा हो गया कि all the front gap or the posterior frontal nail and the terion, asterion all are ossified within 1 to 3 years of age। 1 to 3 months का सब 3 महीना में ossify कर जाता है, except the anterior frontal nail। Anterior frontal nail they are ossified at the age of the 18 to 24 months। 1.5 साल से 2 साल में आपका anterior frontal nail ossify हो जाता है
उस बीच में थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं, व्हाट आर द अदर क्लिनिकल साइन? इफ द इंटीरियर फ्रंटल नेल इज डिप्रेस्ड, it indicates the baby is dehydrated. If it is bulged out during the hydrocephalus, then the उसमें बहुत है, देखिए बच्चा में यदि कोई डिफेक्ट है तो CSF अमाउंट जब बढ़ेगा तो उसका ब्रेन का एक्सपेंशन होते चलता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकेफेलस। केफेलस में पानी भर गया तो हाइड्रोकेफेलस माने द साइज ऑफ द स्कल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब नाउ देयर आर सम अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में देखिए पहला है इनकेफेलस, देखो आपका नोट है आपका सीनियर में एनएनकेफेली। Sometimes the skull bones are not fully developed. In that cases, the brain is exposed to the environment, and that is called anencephaly. So, what are the chemical markers? हम आपको बोले थे स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन के डेवलपमेंट में अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा रहता है। तो कोई भी न्यूरल डिफेक्ट होगा तो अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा रहेगा। तो स्पाइना बाइफिडा वो उल्टा मेनिंगोसिल सब में एनएनकेफेली में अल्फा फिटोप्रोटीन इज इंक्रीज। So in the case of the आपको मेरे ख्याल से at the age of the 11 to 14 weeks, माने 3.5 महीना का एज में आपको एक बार केमिकल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, तो जहाँ की पता चल जाए कि भाई if there is a defect in the baby तो abortion should be done easier। कहा कि बाद में आपका इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद दिक्कत होते चला जाता है। That is the life threatening for the mother। Anencephaly is the point A means no. Anencephaly when the cranial bone is not fully developed, the brain is exposed to this one. What is the chemical thing? Alpha fetoprotein is increased. दूसरा आपको है इनकेफेलोसील। Inecephalon means that there is the inecephalon, means the part of the brain is exposed। इनकेफेलोसील is of 3 types। इनकेफेलोन माने ब्रेन होता है, ब्रेन एक सील कैविटी में बंद है। अब है इनकेफेलोसील 3 तरह का हो सकता है। मेनिंगोसील का मेनिंजेस इज एक्सपोज्ड थ्रू द गैप टू द एनकेफेलिया का पार्ट। मेनिंगोसील the part of the brain along with the meninges both are included from the cranial bone। ये सब आपका मॉडल रखा हुआ है आपका एनाटॉमी का म्यूजियम में, you can see it। तीसरा कहते हैं हाइड्रोइनकेफेलोसिस। तो एक एनकेफेली हो गया, इनकेफेलोसिल में मेनिंगोसिल, मेनिंगोइनकेफेलोसिल एंड मेनिंगो हाइड्रोइनकेफेलोसिल, सब में अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा रहेगा। अब एक आइए आपको तीसरा क्या बोर्ड सेपरेट। तो आगे का इस तरह से रहेगा यार, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ। किसी आदमी का हेड देखें ना, आगे भी लगेगा कि पॉइंटेड है, पीछे भी पॉइंटेड है, बीच में फैला हुआ है, तो उसको कहते हैं इनकेफेलोसील। Because sometimes the sagittal sutures on the anterior and posterior part they are fused earlier, except the coronal and lambdoid suture। आग ब्रेन में हम लोग का बीच में जो सुचर है उसको कहते हैं sagittal suture। ट्रांसवर्स सुचर दो है, आपका आगे को कहते हैं कोरोनल सुचर, पीछे में लैम्बडॉइड सुचर। इसको कहते हैं स्केफेलोसील। क्या चीज? Scaphocyl means the brains are the boards separate। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पॉइंटेड कब होगा? Because the interior and posterior part of the sagittal suture they are closed earlier, ossify कर गया, except the interior में ट्रांसवर्स सुचर है, उसको कहते हैं कोरोनल सुचर, और पीछे में कहते हैं लैम्बडॉइड सुचर। उतना बात तो समझिए ना यार। आपका फ्रंटल बोन और दोनों पैराइटल बोन के बीच में ट्रांसवर्सली जो सुचर है कोरोनल सुचर, और दोनों पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में फिर ट्रांसवर्स सुचर है, उसको कहते हैं लैम्बडॉइड सुचर।
एस्केफेलोसील उसको कहते हैं। दूसरा आपको कहते हैं बात करते हैं ब्रैक्योसिफेलोसील। ब्रैक्यो माने होता है कैसा, when the interior part of the brain are contracted, माने कोरोनल सूचर आपका अर्ली क्लोजर हो गया और लैम्बर्ट सूचर पीछे का नहीं होगा, इस फ्लैट स्कल सिंड्रोम। फ्लैट एस्केफेलोसील सिजेटल सूचर दोनों क्लोज हो गए, दोनों इनने समझने का। ब्रैकी माने होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो इंटीरियरली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको कहेंगे ब्रैकियोसिफेलोसील। तो ब्रैकियोसिफेलोसील ये कब बोलेंगे, जब कोरोनल सूचर व्हेन इट इज क्लोज्ड अर्लियर देन लेफ्ट। तो आगे का माथा पॉइंटर नहीं किसी का था, पीछे फैला हुआ। तीसरा को कहते हैं ब्रैकियोसिफेलोसील। ब्रैकियोसिल ब्रैकियोसिफेली बोली आप ब्रैकियोसिफेली एस्केफेलोसिफेली पहले मैं Asclepius when the brains of both sides of the skull are pointed except other than the middle part, उससे जाकर सूचर क्लोज होने हो गया। ब्रैकियोसिफेली कहेंगे भाई कि इंटीरियरली क्लोज हो गया, मैंने कोरोनल सूचर लैम्बर्ट नहीं होगा, तो ब्रैकियोसिफेली कहेंगे। इसको कहते हैं फ्लैट स्कल सिंड्रोम, देखो कहते हैं प्लेजियोसिफेली। प्लेजियोसिफेली आप जैसे कैसे देखते हैं, आप सुशील कुमार जो आपका वर्ल्ड रिस्लर जो अभी जेल में बंद है दिल्ली में, उनका माथा आप देखेंगे लगता है जैसे टेढ़ा मेढ़ा। तो इन दिस केसेस द कोरोनल सूचर सेजाइटल सूचर दे आर अनइवनली, कोई पहले क्लोज कर गया कोई नहीं किया तो माथा आपका टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। हालांकि तो बॉक्सर टाइप का है तो उसका माथा सब चुरा गया बॉक्सिंग से पिसाया हुआ, लेकिन सुशील कुमार का लगता है जैसे प्लेजियोसिफेली का माथे टेढ़ा मेढ़ा मेरा। Then the zigzag skull or the shape of the skull is not so well formed, उसको कहते हैं प्लेजियोसिफेली। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको माथा हम लोग भूल जाते हैं, सरसों का तकिया पर सुलाते हैं, इसलिए कि जैसे स्कल को आप अरेंज कर दीजिएगा तो माथा और चेहरा सुडौल हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं एक्रोसिफेली। बहुत सारा आपका नेपाल में जो प्रधानमंत्री टोपी पहनते हैं ऊपर की ओर पॉइंटेड रहता है। When the top of the skull they are pointed होगा, तो in that cases the coronal suture and the lambdoid suture both close earlier। जब ये होगा, जब दोनों अर्लियर होगा तो ट्रांसवर्सली एक्सपेंड नहीं हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा, तो ऊपर की ओर लगेगा टोपी पहना हुआ इस तरह से, तो कहते हैं एक्रोसिफेली। उसके बाद माइक्रोसिफेली, जब सब सूचर क्लोज हो जाएगा माइक्रोसिफेली। माइक्रो माना स्मॉल हो गया सिफेली। इस तरह से आपका डेवलपमेंट ऑफ द स्कल बोन समाप्त हो गया। अब एनी क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब बोन्स पर क्या होगा? अब देखिए हम आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, रोल नंबर 18। आई डोंट नो हु इज 18। 18 बॉयज है कि गर्ल्स आई डोंट नो, लेकिन आप बोलिए कि व्हाट इज एनेनकेफेली। रोल नंबर 18 19 कोई बोलो ना जी। हेलो हेलो, बहुत यार गुस्सा आपसे है का जी? आवाज आ रही है? हेलो, रोल नंबर 54 कोई बोलो तो जी व्हाट इज एनेनकेफेली
हम मान लीजिए आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन दी, ए मीन्स नो, केफाइली मीन्स ब्रेन, माने ब्रेन यहाँ नहीं होगा, नाम है एनएल केफाइली, तो आप बोलिएगा कि व्हेन द स्कल बोन्स आर नॉट डेवलप, द नर्व डेवलप होगा तो क्या ब्रेन आर एक्सपोज टू द एक्सटीरियर, दैट इज कॉल्ड एनएल केफाइली। अब है अस्केफॉइड बोन को देखते नहीं कहते हैं कि सुपीरियर में पढ़े ना भाई, अस्केफॉइड, लूनेट, ट्रैक्यूट्रल, पिसिफॉइड। अस्केफॉइड माने बोट सेपेड बोन कब होगा? व्हेन द इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली जब नैरो होगा, तो सेजाइटल सुचर क्लोज हो गया, बीच में फैला हुआ कब रहेगा? कोरोनल सुचर, लैम्बडार्ड सुचर क्लोज नहीं होगा अस्केफाइलोसिल। उसके बाद कह रहे हैं कि एक्रोसिफाइली, जब ऊपर में पॉइंटेड कब होगा? जब कोरोनल लैम्बडार्ड दोनों के हो। ब्रैकीसिफाइली कहते हैं आपको लाइट स्कल सिंड्रोम। लाइट स्कल सिंड्रोम कब होगा? जब when the coronal suture are closed earlier than the lambdoids, वो सब हो जाएगा ब्रैकीसिफाइली। आपको प्लेजियोकेफाइली आप याद रखिएगा सुशील कुमार को, when the all the sutures are closed at the different time in which the skull टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, प्लेजियोकेफाइली। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, आपको अभी क्या बोलते हैं, ऑल द सुचर्स आर क्लोज्ड within 1 to 3 months of the birth of the baby। तो जैसी बच्चा जन्म लेता है उसी समय से उसके माथा को यदि हाथ से रोज गोलियां देंगे तो उसका माथा बच्चा का डॉल हो जाए, लेकिन 3 महीना के बाद नहीं, because the only anterior frontal nail is open and rest of the sutures are closed। रोल नंबर 117, 117 ऑप्शन बताइए। यस सर, तो आप कुछ हमसे पूछिए ना यार, हम क्या बोले जब। रोल नंबर 123 कुछ पूछो ना, समझ आ रहा है ना जी, इतना विस्तार से पढ़ा इसलिए रहे कि ताकि आप ये नहीं आपको लगे कि भाई ये चीज छूट गया। ये सब क्वेश्चन आवेगा। अल्फा फीटोप्रोटीन इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब का जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ जाए, मार्कर। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम डिस्कस खाली करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एपेंडिकुलर स्कल।